by which the animation, by which the you know चेतना जिससे इन सारे में व्याप्त हो जाती है. जैसे आपकी बॉडी में एलिमेंट है, वो चेतन है, और जो बाहर है वो अचेतन है. और वही अचेतन जब बॉडी के भीतर पार्ट हो जाता है, तो वो चेतन हो जाता है. जैसे आलू आपके जो फ्रिज में रखा हुआ है वो अचेतन है इस टाइम, लेकिन जब आप खा लेंगे उसके जो आपके बॉडी का अंग बन जाएगा, देन इट बिकम चेतन हो जाएगा. तो जो चेतन तत्व है, दैट इज अपर प्रकृति, भगवान की, उसको अपरा हायर नेचर बताया गया. एंड दीज आर द cause of existence of all the moving and non-moving things. In the non-moving things, this conscious element is not there. Okay, and the cause of all causes is Brahma or Krishna. The whole universe, which permeates everything in an unmanifest form, just like a necklace is held in shape by the string. And the string is not there, then they all will dissipate. They either ho jayenge. It won't be the necklace. Same thing by this element, by his presence, this body is in one piece. One piece means it's not deteriorating, but as soon as it goes away, all the elements, they just like टूटे हुए हार बिखर जाते हैं, उसी तरीके से बॉडी के सारे ये बिखर जाएंगे. अच्छा, उसके बाद माइंड जो है, it है it is clear in the beginning. Okay, it was with the Lord. जो क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, initially there was a word and the word was with God. So this similar kind of understanding they have, but they have in a very entirely different words. Okay, so but and then it's separated, and this the living entity has three, deluded by three gunas: Sat, Raj, and Tam. Now Sat, Raj, and Tam, they are in the material universe. Okay, so these, they are deluding. Okay, because of this, the living entity cannot see the ultimate truth. So this was now there was a question from Surenji that why Brahm created this deluding energy. What was the need? Actually, Lord did not create the deluding energy. It is his energy, and it was uh, it was not meant to delude. As long as somebody is surrendered to him, somebody is not uh, enmeshed with the Maya, then he can see the reality. So Renji asked then, is there any primitive people, okay, how they could see when they don't have access to Gita and they don't have knowledge of, okay, because they are so close to the unartificial way of life. There is nothing deluding, there is nothing taking, distracting them, okay, they just see directly, they and the nature. Okay, so the deluding power is not that much effective for them. अच्छा, उसके बाद इसने बताया, कृष्ण भगवान ने बताया है कि there are four kind of people: those who surrender to him, and they are, one type of person is who is in the distress. Okay, when a person is in distress, then he remembers God. हे भगवान, मेरे को निकाल लो इस मुसीबत से. दूसरे होते हैं जिज्ञासु, those who are seeking knowledge, what is Brahm and what is ultimate reality. And third are Artharthi, those who are taking help of God, for the wealth, money, pleasure, fame, and fortune. And fourth are Gyani, those who are men of knowledge. And Lord Krishna says among these four kinds of, he likes the Gyanis most because they make the effort to realize him and have one pointed devotion for him. Lord Krishna is most beloved of the Gyani, and they are his most beloved. And then Lord Krishna says all these four kind of people are noble, but Gyani is like his own form because
she with the mind focused on him remain established him as the supreme goal. Now there are other people, those who worship for worldly desire. Now worldly desire, they worship various demigods, or bhoot, even some people worship bhoot pray. So Lord Krishna says that they get their benefit from the demigods, but the demigod themselves drive the power to give that boon to these people from him. Okay, so actually those people, those who are worshipping the demigod, actually they are worshipping Lord Krishna indirectly. And then he says that all beings get deluded by the pair of opposites like favorable and unfavorable, like and dislike, pleasant and unpleasant, joy and sorrow, which are created by desires and aversions. Acha. So far we have, but the people, those who are virtuous action, have removed the impurity of their mind, worship him, Lord Krishna, with conviction. So far we have done up to this point. Deepak ji, if you want to say something. असल में एक बात मैं कहना चाहता हूँ जैन जी इसी संबंध में, क्योंकि जो सुरेन जी प्रश्न पूछा था उसका एक बड़ा सुंदर है, मैया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नान कौनते जगत परिवर्तती, कि मेरी लीला है हो रही है तो जगत परिवर्तित है, तो this is what happening, it is happening, this is the way, there is no reason, nothing, it is happening. जगत परिवर्तित है, जगत हमेशा क्षण क्षण बदल रहा है, वो मेरी लीला है, that's what it is. नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने ओम जी, यही मैं कहने वाला था कि बात वहीं से शुरू होती है कि एक को हम बहुत श्याम भगवान अपने आप को एक से ज्यादा करना चाहते हैं, वो कर लिया उन्होंने। उसके बाद फिर अगर हम इस बात से भ्रमित होते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं या हमारे द्वारा किए जाने पर ही ये होने वाला है या वो होने वाला है, उसका कल्याण, इसका हमारा कल्याण, तो वो हमारा भ्रम रहेगा। बिकॉज भगवान ने खुद ही सृष्टि को बनाया है, खुद ही चला रहे हैं, खुद ही एंजॉय कर रहे हैं, और दैट्स द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर, that as far as I could hear from everyone and what I could get my hands on to read on. So basically we are part of the whole creation, each individual one of us, and we have to always kind of feel that we are part of the creation, we are part of God. Then everything works out fine. Then we don't have any anxiety about, okay, what's going to happen with me, what's going to happen with them, everybody will be taken care of eventually, no matter what background they come from, where they're all part of the same creation. That's what I think gives me a little bit of calmness. Okay, yeah, I'm not too much responsible for everything. Surendra ji, this is a individual understanding to calm themselves. Okay, to calm. But your question was that why you have to do all this? Why it was so created? I mean, why not God started to liberate everybody? First. So it's like a child. I mean, I like oversimplified. I understand it's much more than that, but yeah, it's a very simplistic look at life. And another question was how the primitive people, okay, those who don't have, coming to that now, don't have access to Gita, or even they are not literate. Is there any way for them to get salvation? I mean, we are discussing here all kind of gyan and this and that, but are they completely left out by God? But that's not the case. They are not left out. Okay, don't think. I agree with that one. But you say they're not left out. Yeah. Now we can argue. We can theorize all those things because they don't theorize. Okay, they have direct experience.
even better than us. Yeah, better or worse. If you go and ask somebody like that, like indigenous person or anybody else, maybe somebody living in the forests of Africa or wherever, oh, would you like to read Bhagavad Gita, please? It's a very nice literature. It will give you God consciousness and this. Oh, I say, what? No, get away. I'm just going hunting, is my life. That's what their life. No, God has made all kinds of living entities in the world. If you asking a little ant, come here, sit on the dining table, I offer you all these foods, fantastic. No, they're not interested. They're doing their own thing, and their salvation is in that, that life. So I think everything is taken care of. Jitendra ji very nicely put together. We are very clouded with the culture we live, very clouded, and that diminishes that experience of the. I get that, beautifully put. I recognize that. I mean, you said it rightly, and it just for a moment I forgot that. So thank you. ये जो धुआं जो है ना, ये जो स्मोक है, वो हमारा क्रिएट किया हुआ है. No, I see. You said it very correctly. Thank you. That was great. छाया जी कुछ कह रही? नहीं, जो सुरेंद्र भाई साहब ने बोला कि अगर जो लोग बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, क्या उसका कभी साल्वेशन नहीं होगा, तो मैं उसका ये मतलब समझती हूँ कि एक दो एग्जाम्पल देखते हैं हम. एक देखते हैं कि एक योगी बैठे हैं और बिल्कुल हम उनको देख रहे हैं, वो हिल डुल भी नहीं रहे हैं और घंटों कर रहे हैं, पर उनका दिमाग वर्डली उसमें फंसा हुआ है, तो वो दे आर नॉट प्यूरिफाइंग देयर थॉट. But somebody, that person may be just sweeping the floor, but the whole attention is to that task. I think that's more purity of thoughts. And that what is it, अगर हम अपना कर्म एक अच्छी तरह करें और अगर पढ़े भी नहीं है पर किसी को दुख ना दें, झूठ ना बोलें, हर्ट ना करें, ये भी एक यात्रा है अपने साल्वेशन की, मेरे ख्याल से. I think Jayanti ji will agree with you. Yes, there you go. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं, हम भी इसको ना वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को. वेरी गुड. हाँ जी, चित्रा जी. ये कह रही थी, आप कह रहे थे ना कि अगर पढ़ने वाला ये ज्ञानी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है और उनको सबसे प्यारा है. लेकिन मुझे याद है बहुत साल पहले जब हम लोग गेट टुगेदर करते थे इस गीता के लिए, तो उन्होंने यही कहा था कि ज्ञानी और भक्त दो तरह के लोग हैं. उनमें भक्त जो है मुझे छोटे बच्चे जैसा लगता है, मुझे वो उतना ही प्यारा है जैसे माँ को एक छोटा बच्चा प्यारा लगता है. If I remember that, that's what you said. And the other thing is, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं समझती हूँ श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की जरूरत है. वाह, अगर ये तीन चीजें आपके पास नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञानी हो जाइए, जैसे कि आपके रावण की जो हालत हुई थी वो हम सबकी हो सकती है. असल में चित्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक निर्मल हृदय नहीं होगा, जब तक निर्मलता नहीं आएगी, तब तक ये सब कुछ चीज धीरे धीरे सब बेकार रहेगा. और जब निर्मलता आएगी ना तो भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तो पूरा भगवान ने, जैसे आपने कहा कि भगवान भक्त बच्चे के समय है, मानस में भक्ति का इतना निरूपण किया है, इतना किया है कि भगवान ने कहा कि देखो सब मेरे हाथ से छोड़ दो, डोंट डू एनीथिंग, लीव इट टू मी. बट दृढ़ विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और वो सब आता है अच्छी संगत से. और आप ही बताते हैं कई बार मुझे अच्छी संगत जो है वो मिलती है भगवत कृपा से. बिल्कुल. So it's like a catch-22. इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, तो मिलेगा मतलब तो ये है कि और ये भी दीपक भाई साहब, ये भी हमारे कर्मों का खेल है कि हमें कैसी संगति मिलती है. अदरवाइज बहुत सारी ऐब है, बहुत सारी दुनिया में बुराइयां जिसमें आदमी पढ़ सकता है और अपनी लाइफ खराब कर सकता है. ये हमारे अच्छे कर्म है कि हम आपके साथ संगति बने हुए हैं, संगति से. वेरी फॉर्चुनेट, वेरी भाग्य है हम लोग. एंड वी हैव दिस
और नहीं आप लोगों को अच्छी भी लगने लगी ये बातें सुन के। हाँ जी चलिए आगे बढ़िएगा। विवेक जी भी आ रहे हैं, आ गए हैं। नमस्कार विवेक जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज तो मैं थोड़ा सा वहां से रिकॉर्ड भी शुरू कर दिया जहां से यतेंद्र जी ने रिकैप शुरू किया था, ताकि अपने आशा जी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। शी इज एन ardent student, she wants to see the whole recording, so I'll send it to her. चलिए टेक्स्ट नंबर 25 श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। I am not manifest to everyone, being wielded by my divine Yoga Maya energy. Hence, those without knowledge do not know that I am without birth and changeless. देखिए ये ओडिया बाबा ने भी बड़ा अच्छा व्याख्या की है कि मैं सबके देखने में नहीं आता हूँ। जिस पर ईश्वर गुरु शास्त्र आत्मा की कृपा है वही मुझे देख पाता है। इन सबकी कृपा से जो इन सबकी कृपा से शून्य है वो ये नहीं देख सकता, क्योंकि जो मेरी योग माया से ढके हुए हैं वे स्वरूप को नहीं जानते, जैसा कि 14वें श्लोक में कहा था। देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान ये जो ओडिया बाबा कह रहे हैं वो कोई बात नहीं कह रहे हैं ऐसी। यहाँ पे सीधी बात बता रहे हैं, आई एम नॉट मैनिफेस्ट टू एवरीवन, being wielded by my divine yoga my energy. Hence, those without knowledge do not know that I am without birth and changes. Lord Krishna has not said about कृपा किस किस की होनी चाहिए। योग हम क्या कहते हैं, गुरु का उन्होंने नाम भी नहीं लिया है, शास्त्र का भी यहाँ पे कोई नाम नहीं लिया है। और ये तो असल में ये लोग कहने वाले हैं ना, उनका होता है, they want to put something more in it. We are not going to go off tangent on what people say. We are going to just focus what Lord Krishna is saying, and we will try to make sense, what actually Lord Krishna is saying. So Lord Krishna is saying that I am not manifest to everyone. We can see that he is not manifest to everyone. We are not seeing God in his manifestation. Being wielded by my divine yoga my energy. Yes, we can see that yoga maya is our limitations, okay, of our senses and our intellect. Hence, those without knowledge do not know that I am without birth and changes. Okay, so now here again he's putting emphasis on the gyan. Okay, without gyan, they do not know that I am without birth and changeless. So if you want to take this shlok, then it is that we don't know what Lord Krishna is saying. अब इसके एक्सप्लेनेशन आप कितने भी दे दीजिए, उसके बाद आप ये कह दीजिए कि क्या कहते हैं, बच्चे की तरह डिपेंड हो जाओ, तब वो कृष्ण भगवान अपने को बता देंगे। I mean, you can say all kind of things, but this, if you just keep focus on this shlok, what he's saying is that without knowledge, they do not know that I am without birth and changeless. But किसकी कृपा से नॉलेज आती है, ये बहुत बड़ी चीज है। How the knowledge comes? Whose कृपा? No, he's not talking anything about kripa, okay? But how the knowledge comes? वो किसी और जगह पर बताएंगे ना। Knowledge coming. He's going to just stay, okay? He's going to tell you one by one. Yeah, किसी और जगह पे बताएंगे। आती तो कृपा से ही है, but किसी और जगह पे बताएंगे। आएगी कृपा से, but if you stay a sequence, okay, कि वो कृष्ण भगवान ने ये कहा, तो सारी चीजें खुल जाएंगी ना। अगर हम इधर उधर चले जाएंगे तब वो नहीं खुलेंगी। तो इस मुझे बड़ा संशय है इस बात में कि भगवान के जो नॉलेज और ज्ञान देते हैं और जो हमको सत्संग देते हैं वो कैसे देते हैं।
कृपा से देते हैं, हमारे पुण्यों से देते हैं, क्या व्हाट इज कृपा की बात तो अभी आएगी ना। पहले तो जस्ट सुन लीजिए कि वो कह क्या रहे हैं। अगर आप उसको ठीक से हम नहीं सुनेंगे कि कृष्ण भगवान कह क्या रहे हैं, then how we will understand? I mean, that's what the thing is. कृपा तो हो गई ऑलरेडी, हमें मनुष्य जन्म मिल गया, हम यहाँ तक पहुंच गए, हम यहाँ बैठे भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो कृपा तो हो गई पहले। ये तो कृपा हो गई, अब हमको उनकी कृपा हो गई, हमको उसकी कृपा को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करना है। इंटेलिजेंटली यूटिलाइज का अर्थ ये है कि जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनो। मतलब डोंट गो हियर एंड देयर। ये जो इस श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद ने इसमें थोड़ा सा परपोर्ट में ये डाला हुआ, वो आपका फेवरेट जो ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 15 है ना, हिरण्मय पात्रेण, वो उसका व्याख्यान इसमें दिया हुआ है इसने। ये बात बनी कुछ की, मतलब हिरण्मय पात्रेण सत्यस अपिथम मुखम तत्त्वं पूषन् अपावरण सत्य धर्माय दृष्टे। उसमें यह है कि जो भगवान का स्वरूप है वो गोल्डन ग्लो से है। मतलब अगर आपके सामने कोई बहुत ज्यादा चमक हो ना, तब भी आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे व्हाइट आउट हो जाए, ब्लैक आउट में तो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन व्हाइट आउट हो ना, उसका उल्टा होता है, ब्लैक आउट का उल्टा व्हाइट आउट होता है, वो भी नहीं दिखाई देता है। तो जब जो तमाम सारी नॉलेज इधर उधर की ठूस के जो हम करते हैं ना, तो हमारे साथ व्हाइट आउट हो जाता है, हमको कृष्ण भगवान का रूप नहीं दिखाया। तो उसमें ईशोपनिषद में ये प्रार्थना है, वो कहता है, हे भगवान, ये जो अपना मेरे जो माइंड में इतना जो भर गया ना, उसको प्लीज रिमूव दैट सो दैट आई कैन सी योर फेस। और फिर उसमें आता है कि या पूषण्य कर्ष यम सूर्य प्रजापात व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्याम सो अवसा बसो पुरुषा सो हम अस्मि। और मैं देख रहा हूं आपने हटा लिया है ना, आपने जो गोल्डन ग्लो हटा ली है, नाउ आई कैन सी दैट इन अ सेंस आई एम योर पार्ट। खैर वो तो आगे जाएंगे। तो हाँ, दीपक जी आप बता रहे थे। हाँ, बहुत बड़े प्यारे श्लोक हैं। उसके आखिरी श्लोक जो ईशा भाष्य पर के, मेरे ख्याल में अगर सबको, मेरे ख्याल में उसको बड़ा ध्यान रहना चाहिए, तो अंत तो वही होगा। वो 4 श्लोक हैं, वो बताए गए हैं कि मतलब हर एक को अपने एंड स्टेज में रोज पढ़ने चाहिए। उसका तीसरा श्लोक है, उसके आगे क्या कहते हैं, वायुर अनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतुर्वस्मर कृतम स्मर कृतुर्वस्मर कृतम स्मर कृतुर्वस्मर कृतम स्मर अग्ने नय सुपतः राये अस्मान विश्वानि देव वयुनान विद्वान इदो जस्मत् द्युधारणमेनो भूयिष्ठाम नमिक्तम ते विधेम। वो जब बाड़ी पड़ी होगी आपकी, तो ये श्लोक आखिर वाला सुनाया जाता है, बिफोर यू आर पुट इन द। मेरे ख्याल में जिनको भगवान की बड़ी कृपा होती है, तो उनके पास जो पंडित हो, तो वो श्लोक को पढ़े, सुना है। हाँ, तो वो श्लोक तब सुनाया जाता है जब, मतलब when you are in a all pandit don't do this, going to move in the crematorium. चलो, तो इस श्लोक में तो भगवान यही कहते हैं कि डोंट थिंक दैट आई एम एन ऑर्डिनरी person, just a ordinary human looking person. I'm unborn and infallible. So yeah, that उसी के ऊपर emphasis है। अच्छा, हम अब देखिए आगे उन्होंने और कुछ टेक्निकल टर्म्स आई हैं इसमें, उनको हमको समझना पड़ेगा। वो सब अगला श्लोक पढ़े। हाँ, अगला पढ़िए 26 में। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। O Arjun, I know of the past, present and future, and I also know all living beings, but no one knows me. असल में ये चौथे अध्याय के अंदर ही भगवान ने यही कहा है, मैं सब जानता हूँ और कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं सबका अनादि कारण हूँ। सेम थिंग यहाँ पे कह रहे हैं।
तो इसमें तो हम कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद इसका व्याख्या आप कितनी दीजिए, दैट्स व्हाट इट इज कि ही नोज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड he knows all. And also Nobody knows him. yeah, and Nobody I also know all living entities. Yeah. So यहाँ पर वो सुरेंद्र जी का भी क्वेश्चन आ जाता है, वो कैसे जानेगा? भगवान तो सबको जानते हैं. I'll know all living entities. But he says, but no one knows me. Yeah, but no one knows me. तो वो जो है, Me, no one knows. Yeah. That's the truth, because I don't know him. That means, and I am one of the he's talking about. I guess he's talking about most of us. Yeah. Yeah. You're not the only one. Millions and billions of people. नहीं, millions of people बहुत से तो जानते होंगे उसको, या समझते हैं. लोग जानते हैं असल में, और आप जानते हैं जब अनुभूति होती है तो उस समय एक क्षणिक भास तो होता ही है. हाँ. ओके, चलिए हाँ, नेक्स्ट वन आगे पढ़ें. कौन पढ़ेगा? पढ़ने वाला कौन है? चित्रा जी पढ़ेंगे? आपका माइक आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है. थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं. 27वां पढ़िए. इसका 7th चैप्टर का? हाँ जी, 7th चैप्टर का 27th श्लोक. ओके. नेते स्मृति पार्थ जान्य योगी. नो, ये नहीं. इच्छा देश द्वेष. दीपक जी मैं पढ़ा देता हूँ इसका. हाँ, आप पढ़िए. दैट्स आई एम कंफ्यूज. मेरा 7th निकला हुआ है मगर वो नहीं आ रहा जो आप लोग पढ़ रहे हैं. 27th. ओह 7th. ओके. इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप. ठीक. O descendant of Bharat, the dualities of desire and aversion from illusion. O conqueror of enemies, all living beings in the material realm are from birth deluded by these. अच्छा, ये राग द्वेष का ये चक्कर बड़ा 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 गहन है. हर मिनट वो खत्म नहीं होता है. हाँ, राग द्वेष, श्रेयस और प्रियस हमेशा चलता रहता है, बराबर हमेशा चलता रहता है. ये मटेरियल नेचर में राग द्वेष किसको कहते हैं? बाय डिजाइन उन्होंने राग द्वेष हमारे भीतर भरे हैं, है ना. राग द्वेष व्यवस्थित हो. क्या है? हाँ, या इंद्रियार्थेस राग द्वेष व्यवस्थित हो. व्यवस्थित का मतलब बाय डिजाइन पर्पसली रखे गए हैं, और पर्पसली इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आप जैसे राग आपको उस चीज से है, जैसे ताजा भोजन बन रहा है, उसकी मतलब फ्लेवर आ रही है ना, देन यू हैव अ राग. जैसे पकौड़ी चल रही है ना, यू वांट टू ईट इट. अच्छा, जो खराब हो चुका है, जिसमें बदबू आ रही, सड़ा हुआ है, देन यू वांट टू डिस्कार्ड इट. सो अगर ये ना होता तब हम प्रॉपर चीज नहीं ग्रहण कर पाते. असल में यतीन जी, मैं आपसे बार बार पूछता था कि क्योंकि कई चीज तो बहुत बड़ी होती है, जैसे मान लो यू हैव गॉट a huge stock something, you get a lot of profit, but आपको जो एक छोटी सी $1 की चीज के ऊपर मन अटका रहता है, in spite that you have so much that you don't care about the dollar, पर वो छोटी चीज में क्यों अटका रहता है मन? और जब जानता है कि मेरे पास इतना है कि मुझे कुछ जरूरत नहीं है, तो why this happens कि एक छोटी चीज में मन अटक जाता है. वो वही प्रैक्टिस की बात होती है, मतलब वो आपने को ट्रेन कर सकते हैं. उसके लिए आप अगर मेरे में ऐसी है, इसका मतलब मैंने अपने को ट्रेन नहीं किया प्रॉपर्ली. या सही बात है. छोटी मोटी. शायद जी कुछ पूछ रही हैं आप? नहीं, अच्छा ठीक है. राग द्वेष is also actually a tool for survival. Yeah. If you look at it carefully, if we didn't have that, we wouldn't know what's good from bad, and we would just let the bad come to us, and then
then we are taken, like we are gone down, you know. Yeah. So it's बिल्कुल like ठीक, वेरी गुड, वेरी food गुड. for ये हर survival. एक Yes. लिविंग एंटिटी के लिए डिफरेंट होता है. जैसे सुअर के लिए कुछ राग है, उसका किसी चीज में राग Yeah. है, तो हमारे Yeah. लिए वो ओके. Yeah, ठीक है. और वो सफाई कर देता है सारा. It does the cleaning for the other people, you know. हाँ तो अगला भी आप ही पढ़ लीजिए. ओके. तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता. But person whose sins have been destroyed by engaging in pious activities become free from the illusion of dualities. Such persons worship me with determination. अब यहाँ पे देखिए हिंट दे दिया भगवान ने. पहले तो हमको सिंफुल एक्टिविटीज से दूर रहना होगा. एंड pious, ये आशा बताइए, भगवान ने एक आशा है कि हाँ pious ये एक्टिविटीज आशा है. या there is a hope. हाँ. अब ये देखिए ना, पिछले श्लोकों में जो उन्होंने बताया, उसके बाद now he is giving the hint. Become free from illusion of dualities. How we become free from illusion of dualities? And that's the proper way. That engage in his pious activities. वो pious activities में होंगे तो हमारा जो अपना स्वार्थ है वो कम होता चला जाएगा. मतलब अपना स्वार्थ कम होगा तो राग द्वेष कम होगा. राग द्वेष कम होगा तो मतलब बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो उसके बाद फिर illusion कम होगा. असल में ये पूरा जो अगला हमारा चैप्टर 8वां, वो पूरा बिल्कुल मन की शुद्धि के लिए पूरा है. सारा पूरी इंद्रियों को किस तरह ठीक करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और इंद्रियां कितनी उसमें घूमती फंसी रहती हैं, तो उनका निर्मल कैसे होगा वो धीरे धीरे भगवान बताएंगे. और अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान उसी में कि ये क्यों हो रहा है. मैं आई कैन नॉट बिलीव दैट इट कुड बी गॉन अवे, बिकॉज लाइक मन का चंचल इतना है कि वो वायु की तरह थामना दुष्कर है. तो उसको आगे बताएंगे कि हाउ यू, जैसे आप बता रहे हैं कि इंद्रियों को ठीक करने के लिए, वश में करने के लिए जो आगे के उपाय हैं वो बहुत जरूरी है. और 6th चैप्टर में बता ही चुके हैं ध्यान योग से. चलिए मैं अंतिम श्लोक में अगले 2 श्लोक राज जी पढ़ेंगे. श्लोक नंबर 29 और 30. जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विद्वः कृतस्नम ध्यात्मं कर्म चाखिलम्. Those who take shelter in me, striving for liberation from old age and death, come to know Brahma, the individual self, the Brahma, the individual self and the entire field of karmic reaction. तो इसमें ये बता रहे हैं कि those who take shelter in Lord Krishna and striving for liberation from old age and death come to know 3 things. तीन elements के बारे में बताया. Brahma, the individual self and the entire field of karmic action. ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म, इन 3 चीजों के बारे में they will come to know. अब ये जो 3 हैं, 3 एलिमेंट्स, ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म, ये अगले चैप्टर में समझाए गए. इसमें तो डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है. ये ट्रांसलेशन प्रभुपाद का ये लिख रहे हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन्स who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. ये devotional service अपने आप, हाँ. Yeah. And यहाँ वो कह रहे हैं they are actually Brahma because they entirely know everything about transcendental activities. No, I think that's right. They're not Brahma. They're not Brahma.
दैट उन्होंने खींच दिया है। खींच इसके यहाँ दिया है। डिवोशनल सर्विस कहीं नहीं आया है, जो बता रहे हैं Yeah. ना। इसमें विवेक जी हैं, विवेक जी क्या कह रहे हैं? हम विवेक जी, आर यू देयर? He's gone. Okay. He's there, but I must be busy. Yeah, he is busy. Okay, चलिए, नहीं तो उनसे पूछ लेते। I think he will also agree with that कि खींच रहे हैं यहाँ पर। ने वो बताते उससे क्या कहते हैं, राम सुखदास जी से। हाँ राम जी। सुखदास जी की, राम सुखदास जी की मेरे पास है। Yeah. हम पढ़े लेते हैं। मतलब एक तो ये जो टीकाकार है ना, दे गो ऑफ द पॉइंट। और देखिए राम सुखदास जी का मैंने जीवन पढ़ा था, कितना सिंपल सरल। He didn't want to any publicity at all. और जो जितने लोग ज्ञानी हैं, मैं जो भी मैंने वक्ता हैं, they all want publicity there, but he never. He stayed. He was over 100 years when he passed away. With you. और जिंदगी भर उन्होंने सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया। Every time he does good for humanity and for giving अध्यात्म के लेक्चर्स, और बहुत जिंदगी भर उन्होंने उसमें गुजार दी अपनी पूरी। लाके साधु 4 वर्ष की उम्र से उन्होंने किया सारा। तो देखिए उनका ट्रांसलेशन ये है कि जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान लेते हैं। हाँ, ये बेटर, या दैट्स ठीक है ना जतिन जी? यही पूरा जैसे आपने बताया ना, वही उड़िया बाबा ने लिखा है। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स। हाँ, तो ये है सीधा का साधा। ये राम सुखदास जी का मैंने पढ़ा, तो और ये उड़िया बाबा का भी यही है, सेम थिंग। अब ये देखिए ना, इसमें बताया है कि जो जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए, अब जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए हम इसको कोशिश कर रहा है, बहुत जरूरी है। हाँ, तो जिसने ना तो उसको किसी को ये ज्ञान है कि मैं एक दिन मेरी वृद्धावस्था आएगी, मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, नॉट अवेयर, मतलब अच्छा, और दूसरे मरना है तो मरना है, उसमें क्या है। तो इस एटीट्यूड के साथ भी तो बहुत से लोग चलते हैं, है ना, कि जब तक है लाइफ अपने एंजॉय करेंगे, और क्या कहते हैं, बुढ़ापा तो कभी आएगा ही नहीं, और जब मरेंगे तो सब मर ही जाते हैं। उसके बाद तो क्या है, किसी ना किसी ने देखा है ना कुछ है, मरने के बाद सो वो जस्ट कीप ऑन एंजॉयिंग। सो वो डिल्यूजन है, वो तो मोह है, ये डिल्यूजन। नहीं, सुन तो लो, वो तो क्या है उसमें, मैं जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ। आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट, ओके। आई एम सेइंग बिकॉज़ आई हैड दैट मेंटालिटी एट वन टाइम। अच्छा, तो उसमें वो लोग कभी इसके दे आर नॉट गोइंग टू रीड गीता, ओके। उनको गीता पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये जब खुद क्या हो कहते हैं, इच्छा होगी, कुछ भीतर से होगी कि मुझे ये, मैं फंसा हुआ हूं, तभी उसको समझने की कोशिश करेगा व्यक्ति, और तभी उसकी समझ में आएगा ये। अच्छा, उसकी परिस्थिति ऐसी आएगी कि कष्ट में आ जाएगा ना, when he has no other choice, पूरा फंस जाएगा कि भगवान मुझे किस तरह मुक्त कर, खींच लो। या तो उसको बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, या और कुछ संकट आ रहा है, तो उसके पास एक ही सहारा है कि भगवान को याद करना, नथिंग एल्स। हे राम, जब आदमी मरता है, कोई चोट लगती है कि हे राम, तो चोट लगने के बाद वो और शब्द निकलते नहीं है, हे राम। नहीं, सब लोग नहीं, आपका निकलता होगा। लोग कहते हैं आउच, चोट लगी। I have a question, Yatendra, just a little on the side. Yes. And ये जो जन्म मरण कब कर देना? It's a very childlike question to you. Don't be. I mean, you can laugh at me. I mean, I believe I won't be reborn. I don't want to be reborn. Do we have a choice? We have a choice there. Even if I did not do all the things, I do not want to come back to this. देखिए, एक बात मैंने बार-बार कहा है। What is the answer to that? इनको जरा फिर भी बताता हूँ मैं, सुरेश जी। ओम जी, मुझे इससे पूछ लेने दे, please. देखो भाई, it's a silly question, but that's the truth. I'm sharing very truthfully. To tell you the truth, if we go by our scripture, okay, that's what we
दैट्स व्हाट वी गो, ओके। जो बॉडी हमको मिली है वो हमारे कर्म के कारण से मिली हुई है, ओके। एज लॉन्ग एज देयर इज ए कर्म आशय, उसे कहते हैं खजाना, स्टोर हाउस, एज लॉन्ग एज दैट इज देयर, ओके, देयर इज ए जन्म। अच्छा, वो जब तक खाली नहीं हो जाता है तब तक ये चलता रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। देखिए मैंने यहाँ पर जैन जी कि ये स्वामी ये जो कर्ण सिंह जी ने बताया था गीता के बारे में, जो नई 5 पांडुलिपि मिली है, उनका उद्घाटन करने उन्हें कहा कि देखो हमें पता नहीं कि हम आईसीयू में होंगे, कहाँ होंगे, मरने होंगे, क्या दर्द होगा, तो अभी से हम भगवान का ये कह रहे हैं, भगवान देखो उस समय तो याद आओगे नहीं, हम अभी याद कर लो, अभी हम ठीक से हैं, तो अभी हम आपकी भक्ति पूर्ति जो भी कर सकते हैं अब कर सकते हैं, बाद में जो होगा होगा। I do everything in advance. I was trying to address Surinder ji's question about not coming back. Yes. Not coming back. Punarjanma. Yes. Let me qualify. देखो ऐसा है कि I am doing practices for a long time. It's not that I'm aware of a lot of things. It's not, and I think karma, if I see myself, I have some gravitation from karmas, but generally I've moved forward quite a bit in life. I may be wrong, but that's how I see. तो मेरे मन में कोई इच्छा वापस आने की नहीं है, as honest as I do not want to come back. And so it's a naive question, but if you have any direction on that, I appreciate it. देखिए, आपको पता, आपको लग रहा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। अपने बारे में एक्चुअली हम पूरी तरह नहीं जानते हैं। I accept that. डीप जो है, किसी टाइम आपने इच्छा की हो, वो बहुत डीप चली गई हो, क्या आपको उसका आइडिया भी नहीं है कि वो है, वो एग्जिस्ट करती है। या मैं वो शेर बोलता हूँ ना, आप अपने शौक से वाकिफ कोई होता नहीं, खुद को बू अपने दहन की आती कम है नाक में। So we don't know. Yatindra ji says right. I mean, you don't know. You might think, oh, I know all my desires or non-desires or vices or whatnot, but there are some deep ingrained stuff, left from who knows how many births before, and they kind of chase you in a way to give you the fruit of it, because they are doing their own job. They're saying, okay, karma, reaction is coming, so there you go, you asked for it, now you take it. मैं आप पे कितना ज्ञान आ गया, देखिए my feeling, आपको कितना ज्ञान आ गया है। तो कि when we to do reborn, you have a choice. Don't ask me to prove it. I'm just saying I've heard from many places people talking that by choice we come back. We make a choice. No, we don't have a choice. No, and now you're making the choice that you don't want to come back. Correct. Right? Yeah. So there is provision for it in the Bhagavad Gita, but only if that comes to fruition after all our efforts. That remains to be seen at the last breath. And no more, like last breath, and that's it. Up to that point, you can keep on doing your efforts, and then what happens at the last breath, nobody knows. And the person doesn't even have time to tell somebody, see, I am remembering at my last breath, Lord Krishna, and I'm going, bye-bye. They don't have time to even say that. I do practice every day. I do practice every day that concept of that. Yeah, you might remember. You might find me comical, but I do consciously make an effort every day. That's very good. Achieving and hoping. I don't know, but I'm saying I sincerely working towards that, hoping that I do not have to come back, and that's it. Well, ऐसा है ना, कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म करे जा, उसका फल क्या होगा वो मेरे हाथ में। तो अगर आपने कर्म करते जा रहे हैं, उसका फल क्या होना है ये तो उसी के हाथ में। आपको वापस आना है, किस फॉर्म में आना है, कब आना है, ये तो उसके हाथ में। कृष्ण ये नहीं कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि कर्म मत करो, ओके, वो कहते हैं अकर्म करो। वो अकर्म कहते हैं। अच्छा, तो अकर्म से
आपका नया जन्म नहीं होता है, कर्म से हमेशा होता रहेगा। या एक बात मैं बताऊं सुरेंद्र जी, एक बात और भी है जी इसके अंदर, ये मानस में आया है कि जो मुनिजन यतन करते रहते हैं जिंदगी भर, अंत समय भगवान का नाम याद नहीं आता है। अजामिल को नाम याद आ गया, पापी को, तो ये पता नहीं कर्म की गति भगवान जानते हैं, हम लोग जानते हैं बिल्कुल नहीं। चलिए अब we bow to your efforts, सुरेंद्र जी, you are doing great job. एक बात मैं सब लोगों को बता दूं, आप you don't know yourself, okay? All you know is as a Surendra. All I know as a Yatindra, okay? That's what but I'm not that. This will end for उसका यतीन्द्र जी का कभी जन्म नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, मतलब ओके। I understand that. मैंने एक लिखा था, मतलब what we think that we have been told that's what we are. जब आप 2 साल के थे, आपको ये भी नहीं पता था कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, किसका माँ है, ये कुछ नहीं पता होता, ओके। वो इनोसेंस की स्टेज होती है, उस समय आपका अपने बारे में ज्यादा ज्ञान होता है। उसके बाद फिर आपको नाम दिया जाता है, आपको दिखाया जाता है, आपको सारा ये जो है क्या कहते हैं आपके ऊपर वो की जाती है सारी कंडीशनिंग, और वो कंडीशनिंग जो है वो हम अपना स्वरूप समझते हैं, वो नहीं हमारा। वो चलो यतीन्द्र जी ने तो बात ही खत्म कर दी। वो कहते नाम ही चेंज होने वाला है, तुम नहीं चेंज होगे भैया, तुम तो वही रहोगे, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। तो अभी से समझ लो अपने आप को और फॉरगेट अबाउट के ये बॉडी सुरेंद्र है, इससे पहले कुछ और थी, फिर कुछ और हो जाएंगे तो हो जाएंगे, रहेंगे तो वही। चलो गुनगुनाएंगे, चेहरा वो बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो कि ये विश्वास करते हैं कि कोई वापस नहीं आता है, बस यही है और कुछ। एक तरीके से भी ठीक है, कोई वापस नहीं आएगा। जैसे हम में से कोई भी वापस नहीं आएगा, जो सारे शरीर दिखाई दे रहे हैं, कोई भी नहीं आएंगे। नाम गुन जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, ये आवाज ही पहचाने। महेश्वरी जी, राज जी, मैं बताता हूँ, आप जो कह रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना, ठीक है, वो कुछ लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि अगर हम गीता एक तरफ रख दो, जो हमारा अनुभव है जीवन का विदाउट द नॉलेज ऑफ गीता, वो ये है कि हम पैदा हुए थे, बड़े हुए, दूसरे हमने अपने जैसे लिविंग एंटिटी पैदा किए, उसके बाद हम मर जाएंगे, बस। that's what the reality is in front of our eyes. Hello. Never to come. हाँ जी देव जी। I believe in Khan Yamuri Yafini. When I'm dead, I'm done, and that's the end. आप believe कुछ भी कर लीजिए, हम we are not talking about that. Okay, you can believe anything you like to. What kind of quote is that, Dev ji? Thinking process. That is my thing. The thinking process, Dev ji, that's also is okay. What is that? Gita is instigating us to find out the truth ourselves and experience it. Okay, not just verbalize, not just justified, not the thought process, not our ideas, not our imagination, not our conclusions. Just yes. What's the लोग क्षण मरते हैं और क्षण जीते हैं. We are death and life is coming every instant. Yeah, that also true is in a way. Devji, what quote was that? Kanjamuri, what was that? No, that comes from Quebec, and I met people who were very knowledgeable and very spiritual, and then the conclusion came that we have got so many different thoughts. Everybody, every community, every religion has different. The final conclusion in the gathering came that this was the conclusion. Say it again and translate it, please. What was the conclusion, Devji? Conclusion क्या था? Yeah. Anjamuri Jafini. When I'm done, when I'm gone, I'm done. अच्छा. लेकिन ये conclusion भी तो belief based है. ये तो belief based है. Conclusion भी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रामाणिक है. No, basically this is a question of when we die, what happens. That's a real purpose. लेकिन पुनर्जन्म का प्रमाण है. Everybody thinking a little differently. Even if you read Gita, you talk to 10 people, they think a little bit differently.
So all I'm saying, each one has to recognize on their own what would be their conclusion. देखो मेरी सुनो ना, मैं बताऊं आपको क्या होगा इसके बाद। ये जो आप देख रहे हैं इस समय, because right now you have awareness, you are perceiving, and you were this was all the time, okay, but you are perceiving it, the thing, as a this living, okay. आपको देखो, I'm trying to find the proper word, you know, this will never end. चेतना कभी नहीं खत्म होती, okay, क्योंकि चेतना अगर खत्म हो जाए तब नए लोग पैदा भी नहीं होंगे, okay. इसी the चेतन तत्व which is making us aware, which is making us perceive, which is making you to see this wall in front of you, it is permanent, it never vanishes. जी मैंने पहले बताया था कि मैं आजकल कभी मैंने एक हफ्ते अभी तक मैं जो अद्वैत मकरंद पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसका एक भाव जो आपने अभी बताया है कि चेतना का स्वरूप है, बिना चेतना के पूरे करीब 28 श्लोक चेतना पे डिपेंड करते हैं. एवरीथिंग इज चेतना, नथिंग. चेतना इज लाइक स्पेस, इज बियॉन्ड एंड it gives information to everybody. It is the primary source of everything. देखो चेतना जो है वो इस समय लोकल हो गई है, localized, okay, it's infinite. जैसे स्पेस इज इनफाइनाइट, लेकिन आप घड़ा है ना, कहेंगे इसके भीतर है कुछ चीज, जैसे गुब्बारे में हवा भर देना, कहते हैं इसके गुब्बारे के भीतर हवा भरी है, बट इट्स ऑल ओवर, ओके. सो द चेतना इज ऑल ओवर, और वो चेतना ये जो सारी बॉडी देख रहे हैं ना, उसमें लोकलाइज रूप से फंसी हुई है. Again, I think Yatindra ji, we've come a full circle here on my discussion with you and everyone when we used to meet at Om Ji's house. There are two schools of thoughts, predominant ones. Yeah. One believes the moksha is merging with the Brahma, or if you want to call it something else. The other one is that we are each one of us individual souls, ever existing like a spark, separated from the regional fire, and we have our unlimited existence, either in this body or another. So why not get a divine body like in Goloka? And that's what I think Hare Krishna people are trying to do. They are saying, okay, भगवान ने कहा है आखिरी वक्त पे मुझे याद करो और परमम धामम, मेरे धाम पे आप आ जाओगे. So we are trying to go to Goloka and we enjoy there. And they might get bored over there because they have seen some stuff on earth and they want to come to, and then Krishna says, okay, there you go. You want to go to earth? Okay, go again. So the cycle goes on. I think that's the way it goes on. I don't know what's happening, but you have opportunity to find out yourself. Yes. And I have this opportunity. I'm trying to take, give me my best, give it my best shot, and let's see where it leads me. That does not come by arguments or discussions or by analysis or by intellectual. That does not come by that method. That comes by, there is another thing. Proof of the pudding is in the eating. Yeah. Yeah. आपने एक बात है, अनुभव, experience is the only thing. Yeah. There's no words to describe. Experience, अनुभव, अनुभूति, वही सब चीज है. Yeah, आपको अनुभूति हो रही है संसार की. वो संसार की अनुभूत के बजाय आपको उसकी अनुभूत लेनी है कि जो कि आपको संसार की अनुभूति करा रहा है. ना, मतलब चेतना करा रही है ना, तो you have to identify yourself with चेतना. अगर चेतना ना हो तो बॉडी डेड पड़ी हुई है, इसे कोई अनुभूत नहीं होगी.
So we have to find what is that which is making us. देखिए चेतना का स्वरूप है ना, वो हर अवस्था में आता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इवन तुरीय अवस्था में, सब चेतना का ही आधार है सारा। चलो उसी सब्जेक्ट पे फिर आ जाएंगे। we will conclude this one with the shlok number 30, and Rajji, please do the honors. साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. Okay, those who know me as the governing principle of Adhibhut, field of matter, and the Adhideva, the celestial gods, Adi, and Adi Yagna, the Lord of all sacred performances, such enlightened souls are in full consciousness of me even at the time of death. अब ये देखिए 29 और 30 श्लोक में कृष्ण भगवान ने 5 शब्द यूज किए हैं, 5 एलिमेंट हैं, उसका वो है ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म और अधिभूत, अधिदेव and adhiyagya. So these are 5 things he has told, and we will see what are those things, what they mean. चल में ये आपने बताया अच्छी तरीके से, आपने जो अपने सारांश दिया था ना, you indicated all these things in your email, पर उसमें अर्जुन ने 2 और जोड़ दिए, उसने 7 प्रश्न पूछ लिए उसने, भैया 5 के 7 पूछ लिए। 7 कौन से हैं? एक तो ये कि वो क्या होता है, what is happening, अच्छा, और तो वो आएगा मेरे ख्याल में उसमें 2 से 3 श्लोक में आ जाएगा सारा का सारा। अच्छा, तो ये पहले 5 आएंगे, फिर 2 और आ जाएंगे कि कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। हाँ, तो कर्म और अधियज्ञ, अधिभूत और अधिदैव, और कर्म और प्रयाण काले क्या होता है। हाँ, वो तो आगे आएगा। So अब इसका वो क्या कहते हैं, जो आखिरी श्लोक है वो पढ़े, श्लोक नहीं, एंड में कहते हैं ना, अंत में क्या कहते हैं, ओम जी आप पढ़ दीजिए। ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तो अध्याया। ओम श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृपास्तु, भगवान कृष्ण की अस्तु हो। असल में इसका नाम बड़ा अच्छा है, विज्ञान योग। अगर ये याद रहे ना इसका ये चैप्टर किसके बारे में है, तो उससे थोड़ी सी you have a kind of a lead कि हम ये पढ़ रहे हैं। इसमें मगर कई बार लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं उससे, विज्ञान जो है ना साइंस से कंफ्यूज कर जाते हैं उसको। अच्छा, आप बता दीजिए विवेक जी, विज्ञान का यहाँ पर क्या अर्थ है? विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, जो आपका आत्मा से जो रिलेटेड ज्ञान है, दैट इज विशिष्ट ज्ञान, जो कि सारी की सारी साइंस को आप कंपाइल कर लीजिए, उससे भी जो परे जो ज्ञान है। अच्छा, एक बात है, विज्ञान के माने है प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो नॉलेज आप एसिमिलेट कर रहे हैं, दैट इज विज्ञान। और ज्ञान विवेक जी, ज्ञान तो जो लास्ट टाइम बता रहे थे अपने यतेंद्र जी, जो बता रहे थे, यतेंद्र जी आपने बहुत अच्छा समराइज किया था ज्ञान का। ठीक है, उसी को रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, कौन सा, मैं तो भूल गया। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान का आपने बताया था ना कि मतलब जो जानने योग्य वस्तु है उसको ज्ञान कहते हैं। नहीं, वो दैट इज गे, जो जानने वाली वस्तु है वो गे। हाँ, वो गे है। और जिस यतीन जी ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया था, आई एम फॉरगेटिंग हिज वर्ड,
देखिए 3 होते हैं, ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता। या एक तो होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ज्ञेय है, जिसके बारे में आप नॉट कर रहे हैं, उसके सारी एट्रीब्यूट्स जो हैं उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ज्ञान। और तीसरी है परिज्ञाता, मतलब जिसको ये है, उन तीनों का ज्ञान है, वो है। इसका अगले बार आई कैन टेक, इससे बहुत अच्छा है कि क्या कहते हैं, ज्ञान जो है एक्चुअली क्या चीज। या ज्ञान भगवान के बारे जानना कि भगवान का महत्व क्या है, उसका पावर क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसको जानना और उसको मानना, दैट्स ज्ञान। और विज्ञान जो अभी विवेक जी ने कहा, विशिष्ट ज्ञान, आत्मा से संबंधित वो ज्ञान, वो विज्ञान हो गया। असल में ज्ञेय और ज्ञान करीब करीब एक सही है, हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन ज्ञान और ज्ञेय। नहीं, इसमें 3 टर्म्स भगवान आगे यूज करेंगे, ज्ञान ज्ञेयम और ज्ञान गम्यम। उसमें से ज्ञान गम्यम, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम को देखें तो ज्ञान गम्यम भगवान का एक नाम आता है। अच्छा, हाँ, तो ज्ञान ज्ञेयम और फिर जो ज्ञान गम्यम अल्टीमेट जो भगवान है वो तो है ही। ज्ञान जो उसमें जो हम बढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, विष्णु भगवान की यार, उसमें कहते हैं योग नाम ध्यान गम्यम, वो कहते हैं क्या? असल में जो भगवान ने बताया है कि ज्ञान, जो ज्ञान है वो है कि मैं जीव जानता है कि मैं जो ईश्वर को और जीव का भेद जानता है, वो ज्ञानी है। और जो ईश्वर और जीव का भेद नहीं जानता है, वो अज्ञानी है। अकॉर्डिंग टू मानस, रामचरितमानस, जो ईश्वर और भेद को डिफरेंस जानता है, भेद जानता है, वो ज्ञानी है। और जो नहीं जानता है वो अज्ञानी है। तो मेरे ख्याल में, मैं तो समझता हूँ, मैं तो अपने को बड़ा अज्ञानी समझता हूँ, तो ईश्वर जीव का भेद बड़ा मुश्किल है। ये आप शब्दों में नहीं जान सकते हैं इसको, उसको तो अनुभव की बात है। अनुभव है, जैसे नहीं संभव है, कठिन नहीं है, असंभव है। हाँ, अगर आप कहने के हिसाब से भगवान को प्राप्त भी कर लो तो डिफरेंस रहा ही नहीं, और जानना के क्या अंतर है, ये तो असंभव है। जानना तो नहीं है। और भगवत गीता में भी जैसे ज्ञान बहुत ही कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक उसमें आया है। ज्ञान आप डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। हाँ, एवरीथिंग इज कॉन्टेक्स्चुअल। एक बात और भी है, ज्ञान की डेफिनेशन जो हम अर्जन करना चाहते हैं ना, वो ज्ञान है। जिसको हम अर्जन करना, we want to achieve, want to learn, that is ज्ञान। चलिए, अभी के कॉन्टेक्स्ट में तो हमारा टाइम जो है 4:20 हो गया है। तो हम लोग भगवत गीता का अब 8वां अध्याय शुरू करेंगे अगली बार। और अभी हम लोग थोड़ा बहुत भजन कीर्तन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, 10 मिनट है, 10 मिनट में भाई कुछ लोग नहीं बोले बिल्कुल। हाँ, या जो नहीं बोले प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट्स या कोई हाँ जी, सुरेंद्र जी आप हाथ खड़ा I have spoken a lot. Just for your information, I just got an email. 55 plus can get the vaccination now. Oh, as really? of tomorrow. Yeah. Okay. I forwarded to Deepak ji. I'm 55 plus. 55 plus. And yeah, I actually spoke to Yatindra ji this morning. So you already know that. And then I got encouraged and I booked mine, and it's booked for April 20th, Tuesday, April 20th, and my missus April 24th, Saturday. So I just got it, so I thought share with you those who want. Yeah. I mean, लोग ऐसे हैं। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी। जैसे मैंने
मैंने अपना जो मैंने कहा लाओ मैं अपना करवाऊं, तो मैं ऑनलाइन जाने लगा। फिर मैंने कहा कि हमारी धर्मपत्नी का भी एक साथ हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उसमें एक बार में एक ही होता है। एक ही होता है। तो मैंने फोन किया। ओह, अच्छा। तो उसने दोनों का कर दिया। क्या बात। That's good. अगर आप फोन करेंगे तो दोनों का हो जाएगा। टेक्नोलॉजी अच्छा। कहीं कहीं आपको चॉइस नहीं है। आपको कितनी देर फोन पे वेट करनी पड़ी? ओह, हार्डली मे बी 3-4 मिनट्स। अच्छा Very अच्छा, good, very good. मैं वेट से डर गया, very मैंने quick, फोन बंद कर very दिया। Without changing the subject, I mean, there's a big, today they have announced a lockdown again. हाँ, There's a panic set in. So Phone I'm भी- saying they're making every possible way to expand it as much as they can, the vaccination. So पर yeah, ऐसे सुरेन जी देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं, they don't believe in vaccination. no, I My Yeah. son doesn't believe in vaccination. He says, I'm not going to get the vaccination. well, there are some people Yeah. to whom my even daughter, medically, my like daughter she also. can't take medically. So ये जो है, put that aside. Generally, they are really rushing it because this April looks like a pretty difficult month. So असल में मेरा ये एक्सपीरियंस है कि when you ever get any foreign substance in your body, it has a reaction, because I have a reaction देखो प्लीज, of my injections. सब्जेक्ट जो है ना ये इट्स I apologize for that. Finish ये जो हनुमान जी की पूंछ होती है ना, उसकी तरह ये जो टॉपिक है वो हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ता ही चला जाता है. So Yeah. I apologize for bringing it. I just wanted you to no, know. no, no, that was good, but then it Sure. You're it right. has momentum of its own. Okay. Yeah. So we were discussing छाया जी, क्या कहते हैं, छाया जी ने कुछ नहीं कहा, बिमला जी ने कुछ नहीं नहीं, कहा. मैंने बोला अच्छा, जयंती जी ने कुछ नहीं कहा. So I like to हाँ, क्या कहते हैं, चित्रा जी ने भी कोई खास नहीं बोला, तो we like to listen to them. वर्षा जी ने कुछ नहीं बोला, वर्षा जी बहुत कम हाँ, वर्षा जी, सॉरी, तो वर्षा जी से बोलते हैं। हाँ, तो कुछ तो बोलिए. माइक का ऑन कर लीजिए वर्षा जी. नहीं, एक तो I mean my thinking is little bit always going for the scientific theory, so I'm so different than every one of you. पर ये है द्वंद्व जो हमने जो ड्यूएट गिने, they are by design. If you don't have one, then you will not appreciate the other. So जो भी जो श्लोक में कहा है कि सुख दुखानुभूय शोभते अनांधकारेषु दीपदर्शनम, अगर अंधेरा नहीं होता तो हम दीपक की अप्रिसिएशन नहीं करेंगे, तो दुख के बाद अगर सुख आएगा तो you will appreciate and enjoy it more. So it is by design. So and it is a self-moving cycle. Nobody does anything, nobody creates or nobody demolishes it. So that's my major that is my major comment from today's. That's very true in our material existence. For in the material existence, the happiness follows the pain, pleasure follows the pain, and pain follows the pleasure. So Yeah, that cycle is reset. I mean, it is self-generating cycle. Yeah. You just cannot cut it off or anything. Yeah, and we try to do maximize the pleasure and minimize the pain. I mean, in our every activity is direct towards maximizing pleasure and minimizing the pain. यहाँ तक कि आप ब्रश करते हैं ना, उसका भी अल्टीमेट एम यही है कि आप पेन को अवॉइड करें. सर में ये आपने बताया सारा, ये बहुत अच्छा बताया है. राम सुखदास जी ने ये इसका जोर दिया है कि सुख दुख चलेगा, और जैसे आपने बताया कि सुख के अंदर यू मैक्सिमाइज सुख and दुख में अंदर उसको मिनिमाइज करो, और जो चलेगा जोड़ा, you cannot avoid it. It is a part and parcel of the whole system in material existence. Okay. Yeah. अच्छा, अब बिमला जी आप कुछ बताइए. I encourage everybody to yes, सबको बोलना चाहिए, everybody. I think everyone should take part and tell their viewpoints. जो मैंने ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहे थे आप, ज्ञान according to me, I take it as usual, whether the material gyan hai, material gyan, I mean to say your material degrees and all, and even the spiritual gyan.
is also, I mean, this is much different and much deeper. You really have to know about God. What our purpose now is, at this age, we are only trying to reach God by any means. जो भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो राग द्वेष की आज बात हुई, that's also very important. वो अभी तक भी है, राग द्वेष के साथ साथ मोह भी है. ये मोह इस एज में आके हमारा छूटना बहुत जरूरी है, जो कि हम अपने बच्चों में, बच्चों के बच्चों में ही I mean, we are trying to live. So in order to reach to our real goal, it's very important to leave all these things. या बिल्कुल ठीक है. वो देखिए, और बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा, वेरी नाइस. पर देखिए मोह की भी एक जरूरी है. समटाइम मोह इज इम्पोर्टेंट. आपको अच्छी चीजें मोह होना चाहिए. जैसे कि आपको सेवा में मोह है, कि आई वांट टू, भगवान के अंदर मोह है. That मोह is very good. नहीं वो उसको नहीं, मोह से वो नहीं, आई एम नॉट, मैं मोह की बात कर रही हूँ. मोह से मतलब ये था कि अहम ममेती, मतलब ये मेरा है. जैसे क्या कहते हैं, वो नहीं. आई डोंट थिंक बिमला जी मेंट दैट मोह जो आप बताएं. तो मोह दूर करने का क्या क्या फार्मूला है आपके पास बिमला जी? मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही मोह में लिप्त हूँ. देखिए, भगवद गीता इज द बेस्ट फॉर्मूला. अर्जुन बोलता है ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा. Yeah, but the point is, like, you know, even at this age, अगर बच्चों को कुछ होता है, you are the first one to be affected. वो मैं, I mean personally, मैं छोड़ना चाहती हूँ. Why should I be affected? Is their life, is their karmas. They have to have their life according to their karma. तो फिर क्यों परेशान होते हैं हम? ये अभी तक समझा ही रही हूँ मैं अपने आप को. मैं बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया. मैं आपको बताऊं, देखिए, जो हम स्कूलों से जो ज्ञान हमको स्कूल में जो ज्ञान मिला है, एजुकेशन के थ्रू मिला है, उसका उद्देश्य है कि आप ये वर्ल्ड को पहचाने, मतलब. और जो हम इस ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान हमको मिला कि हम अपने को पहचाने. अच्छा, तो अपने को जब हम हमारा मोह इसी कारण है कि हमने अपने को नहीं पहचान पाए. हमारी पहचान है हमारा जो ये इसका अस्तित्व है ना, उस पहचान में हम रह रहे हैं. उसी की वजह से हमको मोह है, क्योंकि हमने अपने को बॉडी समझ रखा है. हमारी बॉडी के जो रिलेशनशिप बच्चों के साथ है ना, दे आर बिकॉज ऑफ आवर बॉडी. अच्छा, हम वो बॉडी नहीं है, वो टेम्परेरी हमने एक रोल प्ले करना था. जैसे स्टेज पे आता है ना एक्टर, वो रोल प्ले करके चला गया, उसको अपना अस्तित्व पता है कि मैं हूँ कौन सा. मैंने घूंसे भी मारे, मैं विलेन भी बना, कुछ भी बना, लेकिन मैं हूँ नहीं. तो वो जो पहचानना है अपने आप को बियॉन्ड बॉडी, वो है ज्ञान. एक्चुअली कृष्ण भगवान उस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं. और वो ज्ञान हमको नहीं है, वो ज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलता है. उसके लिए साधना की जरूरत होती है. बहुत भाई है, साधना और अभ्यास बहुत जरूरी है, और यही विज्ञान है. हाँ, इसको विज्ञान, यही विज्ञान है. हाँ, क्योंकि देखिए अभी हम वी आर ट्राइंग टू गो इनटू विज्ञान. ज्ञान से विज्ञान में जा रहे हैं. ज्ञान तो स्क्रिप्चर्स का है, जो हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं. But what is Vigyan in this? I mean, Vigyan in the word, material word, is everyone knows. अच्छा, विज्ञान विज्ञान में आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, आपने फिजिक्स का है ना, तो आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आप लैब में जाते हैं. वही हमारा एक एम था कि हमें ये करना है. अब पीएचडी की है मैंने, तो एक सब्जेक्ट था जिसके ऊपर करना था, उसमें थीसिस सबमिट करी, डिग्री मिल गई, सब कुछ हो गया. पर उसको हमने किस लिए यूटिलाइज किया? जस्ट टू हैव अ बेटर लिविंग. हाँ, तो वो लैब में बता रहा था,
जो फिजिक्स की लैब होती है वो आपको भी लैब की, जो वो लैब है हमारा अंतःकरण। ओके, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट इन दैट वन। यही चीज मतलब अब जो इच्छा है वो यही है कि एंड बीइंग ए साइंटिस्ट, एक तो वो एनालिसिस का वो माइंड एनालाइज करना शुरू कर देता है, तो फॉर एवरीथिंग वन ट्राइज टू एनालाइज। व्हेन यू कम टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देन ऑल्सो आपका माइंड वैसे ही, आई थिंक इफ यू आर नॉट फ्रॉम द साइंटिफिक बैकग्राउंड, आपको एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। और मेरा एक प्रश्न ये है कि आई हैव रिसर्च डन ऑल माय लाइफ, मैं देखा है कि मेरी पूरी टीम पड़ी हुई है, कुछ नहीं मिलता है, पर एक छोटा सा एक वन थॉट कम्स, द होल थिंग इज सॉल्व्ड। तो उसमें पता नहीं वो रिसर्च का वो आइडिया किस तरह आता है, इट वाज सो ऑब्वियस that you could see when the idea comes, but before it you struggle with it. तो भगवान की कृपा से आता है। मैंने सोचा पता नहीं how does this thing happen many times, and that was time we got some success, you know. So वो भगवान की कृपा से बिना नहीं आता, क्योंकि आप समय बता रहे हैं पर you are going wrong direction, right direction, and yet you have a whole burden of the whole team कि भैया पैसा जा रहा है सारा, how you are going to achieve that. But only when this thought, this research idea comes or whatever comes, then you get some gain. मतलब चलिए अभी तो वो मोह की बात कर रहे हैं, और हम हमारा ये टाइम के साथ भी हमारा टाइम के साथ भी मोह है कि टाइम चला जाएगा बहुत जल्दी। one more thing. हाँ जी। All these discoveries जो हुई हैं, all the Nobel laureates and all, उनके पास से I mean you kept experimenting, वो ठीक है, but ये जो न्यू डिस्कवरी आती है, this is again from God. You know, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ आइडियाज आते हैं, and suddenly you try to again experiment and you find new thing. जैसे आप बता रहे हैं ना, that happens. अगर कुछ लाइफ हिस्ट्रीज पढ़े इन्हीं साइंटिस्ट की, नोबेल लॉरिएट्स जो है, मैडम क्यूरी सुना है, यूरेनियम जिसने डिस्कवर किया था, और she got the idea only from her subconscious mind. Everybody gets. I think this is just not only, हम सब subconscious mind से आते हैं, and I have my own experience, you know, it comes from subconscious mind. Yeah, definitely. So we will go towards a couple of bhajans now, and then 10 minutes meditation. But इस subject के ऊपर जो मोह की बात आप कर रहे थे, उस पे मैं एक point रखना चाहता था कि मोह is always about losing something. Okay. Yeah. Even losing a coffee pot. You know, I was cleaning the coffee pot and it broke, and I'm saying, oh, my favorite coffee pot, it broke, now what am I gonna do? You know, so I felt a little sad about the coffee pot. I said, well, this is a bad thing. You know, I can always go to the shop, get a new coffee pot, exactly the same kind. When I went to get it, it was a few years old. So now the same coffee pot is made with the little new design, and I'm saying, it's not exactly the same as my old coffee pot. Oh my God, I'm so attached to the damn coffee pot. You know, so this moha is a weird kind of thing, but we have to just understand the kshanabhangurta of everything, like impermanence of everything. I think Buddhists also pay big emphasis on that impermanence part. And once we understand that, and then the moha, you know, it says, okay, whatever, it's okay. That's what's gonna happen, you know, nothing stays here forever. So जो मोह है, all सारे मोह गलत नहीं है. I mean, I bring it back to our sangat. Okay. It's a beautiful. I mean, I ask myself most of my life, I never engaged with anybody else than my Siddha Yoga.
तो ये जो है बहुत स्पेशल है. I say it again and again. What we're doing together, it's a great blend of grace. It's allowing us to expand. And so, इसका जो मोह है बहुत अच्छा है. I'm just giving an example of that. Yeah, there are different types. इसमें जो है ये मोह जो है अच्छा है. ऐसे भगवान का जैसे, I mean, I relate. I would not miss this program for anything, because it raises my awareness. It really raises. That's So good ऐसी to बात hear. कर रहा हूँ. And I finish there. मोह जो है सारे मोह अच्छे खराब नहीं है, but this one as example I think is a beautiful. अनूप जलोटा ने एक भजन गाया हुआ है, मत कर मोह तू हरि भजन को मान ले, हरि भजन को मान ले तू, हरि भजन को. वही गाइए, ठीक लग रहे हैं बट चलिए तो अब भजन कर लेते हैं एक एक. चित्रा जी आप अपना भी तैयार रखिए. ये तो मैंने अभी तैयार नहीं किया था, वैसे ही माइंड में आया था. क्या इस भजन में क्या बात हो गई है जी? भजन ये जो मोह के बारे में गा रहे थे वो क्या? अरे देखिए, मोह अगर आप करना है ना तो मोहन से कीजिए. मोहन से मोह कीजिए, वही कह रहे हैं ना सुरेंद्र जी भी, मोहन से मोह कीजिए. ये सब मोहन के रूप है ना, ये जो आप सब मोहन के रूप हैं, सब मोहन के रूप है. Yeah. If you look at this is how we are engaged. It's a thread of grace that we are engaged together. It's so different point of views, quite different point of views. Yet, very good. We've been sitting for 2 hours and with a lot of grace. So I leave it at that. I'm sure you know that. So चित्रा जी भजन गाएंगी फिर? चित्रा जी आप अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट. मैं सोची थी भाई साहब ने एक मेरे से गाने की रिक्वेस्ट करी थी शिव भजन की. तो कर दीजिए प्लीज दोबारा. तो शायद मैंने आपको दूसरा वाला भेज दिया, जो आपने कहा था वो नहीं मैं भेज पाई. नहीं, पहला वाला भजाइए जो पहला आपने गाया, बहुत किया है. तो मैं That's very beautiful. I अभी भी वाइब्रेट करता है माइंड में. शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन भी झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा, तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा, लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं, शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए, नाचे धरा गगन भी झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, हे प्रेम की सुधा भी, हे रूप चंद्रिका भी, हे प्रेम की सुधा भी, हे रूप चंद्रिका भी, ओ नील कंठ वाले कैसे तुझे रिझाए, शिवनाथ तेरी महिमा
सब देव लोक गाए, नाचे धरा गगन भी झूमे, दसों दिशाएं शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। वेरी नाइस, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। और कोई गा रहा है? आप गाइए। मैंने एक चुना हुआ है, ये भी अनूप जलोटा जी का ही गाया हुआ है, जगत में जो भी आते हैं। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब ही पाते हैं। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं, कौन यहाँ किसको छल पाया, सबने अपना आप गंवाया। ओहो ओहो ओहो, कौन यहाँ किसको छल पाया, सबने अपना आप गंवाया। नादान है जो ये समझे हैं, औरों ने है धोखा खाया, औरों ने है धोखा खाया। जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब ही पाते हैं। जगत में जो भी आते हैं, बचपन खेला कूदा माना, यौवन आया सीना ताना। ओहो ओहो ओहो, बचपन खेला कूदा माना, यौवन आया सीना ताना। प्रौढ़ अवस्था नाम जपा नहीं, आया बुढ़ापा जाना जाना, आया बुढ़ापा जाना जाना। जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब ही पाते हैं। जगत में जो भी आते हैं, जब तक है सांसों के फंदे, जप ले प्रभु का नाम बंदे। ओहो ओहो ओहो, जब तक है सांसों के फंदे,
जप ले प्रभु का नाम बंदे, अवसर ऐसा फिर ना मिलेगा। छोड़ दे सब दुनिया के धंधे, छोड़ दे सब दुनिया के धंधे। जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब ही पाते हैं। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी रिलैक्सिंग टू। देखिए आप लोग कि सांसों में अभी याद करो भगवान को, सांसों में याद करते रहो, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सूदिंग था। थैंक यू। जगत में आते कहाँ से हैं? क्वेश्चन। जगत में जो भी आते हैं, देखिए जगत में कहीं से नहीं आते हैं आप, यहीं से प्रकट होते हैं। यहीं से तो शरीर प्रकट होता है ना। हाँ, सारा जो शरीर है उसके सारे तत्व, अब जैसे अगले साल जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो कहाँ है उनका मटेरियल, बॉडी मटेरियल कहाँ है? सब है वही इकट्ठा होके। जगत अव्यक्त मूर्ति ना। हाँ, मया ततमिदं सर्वम सर्वम अव्यक्त मूर्तिना मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता। और अब ये मनुष्य का जन्म नहीं है, सब जीव का जन्म है, ऑल जीव, सारे जीव। चलो इसमें तो थोड़ा सा उनको हो जाता है ना कि जगत में जो भी आते हैं कर्मों का फल पाते हैं, दिस एंड दैट, भजन बनाने वाली बात है। हाँ, भजन बना दिया। अच्छा बनाया, अच्छा बनाया, आपने गाया भी अच्छा है, भजन भी अच्छा और गाया भी अच्छा। और जन्म भी तो कर्मों के फल का ही रिजल्ट होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और कहाँ जाना है, कौन से पेरेंट्स, कौन से आपके सब जानने वाले, कहाँ कहाँ पूरी लाइफ स्पैन का वो लेखा जोखा बना होता है। And you don't decide where are you going to be born. सब कर्मों का हिसाब है। आपको ये भी पता नहीं कि आपका नाम कौन देगा, क्या नाम देगा, क्या करेगा, you don't know anything. It's all given to you. आपसे अगले जन्म की वो जो है रूपरेखा, सीड वो ऑलरेडी पड़ चुका है। Oh my God. देखो मेरा तो नहीं पड़ा, but I accept you. Yes, you believe that, Surinder ji. Yes. I'm not coming back for sure. अभी in the last years of our life हम सीड भी चेंज कर सकते हैं। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। आप सबसे मैं प्रार्थना I'm going to follow that Surinder ji's optimism. कृपया मेडिटेशन करवाइए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे अब जाना है। अच्छा। So I have to excuse myself. Have a very nice weekend, safe weekend. Yeah. And stay safe. Yeah. Thank you. All So right. much. Namaskar. Namaskar. Namaskar ji. Thank you. So we will start the meditation now. Jitendra ji will do a mantra, and then I will put a 10 minutes timer, and we will do a quiet meditation to end our session. वो बहुत दफे एक्सप्लेन कर चुके हैं मंत्र के बारे में। वही मंत्र है कि जो हमारा बहिर् दृष्टिकोण है, बाहर की तरफ हमारी सारी चेतना जा रही है, उसको थोड़ा भीतर ले जाना है। उसका ध्यान करना है कि जो जड़ शरीर है वो किसके कारण चेतन हो रहा है। हम नहीं जानते किसके कारण हो रहा है, लेकिन हमको अपना फोकस बाहर से लेके उसकी तरफ करना है। ओम नमो भगवते तस्मै
यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि।
चलिए, आज का सत्संग बहुत अच्छा रहा, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और hope we are learning something to enhance our knowledge and understanding. जितेंद्र जी, आपका माइक खोल लीजिए। हाँ, मैं कह रहा था अगला अध्याय 8वां अध्याय शुरू होगा। बहुत व्यक्त अव्यक्त और के बारे में बताया है। ये जो पांच एलिमेंट थे, आदिभूत, आदिदेव, आदियज्ञ, कर्म और ब्रह्म, इन सब के बारे में हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये सब चीजें अपने भीतर फील करने की होती हैं। देखेंगे अगले हफ्ते कैसे। क्यों विवेक जी? जी बिल्कुल। जैसे हमने देखा है, गीता is the only solution for humans' problems. So इसको जितना हम समझ लेंगे, we'll be more toward spiritualism. हाँ, राज जी कुछ कहने लगे थे। हाँ जी, आपका माइक ऑफ है राज जी। राज जी माइक। मैं इसका मतलब है कि अधिकृत जो है, अधि से क्या मतलब है? अधिकृत अधि का मतलब होता है कि फंडामेंटली कहते हैं ना, फंडामेंटली दिस इज दिस। सो व्हाट इज कर्म फंडामेंटली व्हाट इज कर्म, दैट्स या व्हाट इज आध्यात्म फंडामेंटली व्हाट इज आध्यात्म। अधिकार युक्त। हाँ, जैसे स्टेटमेंट देते हैं गवर्नमेंट का तो कहते हैं अधिकृत संवाद या अधिकृत इस तरह का। ऑथराइज्ड या। हाँ तो ठीक है, फंडामेंटल फिट करता है यहाँ। फंडामेंटल भी हो जाए, चाहे अधिकृत हो जाए। अधिकृत मुझे तो लगा था ऑथराइज्ड है ना, उसमें आप उसको अधिकृत फंडामेंट उसको ऑथराइज्ड को कहें तो उसमें अथॉरिटी यू हैव टू आ जाती है। अच्छा। हाँ, अधिकृत में अथॉरिटी आ गई। अधि जो है वो फंडामेंटल है। मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसका? हाँ जी, हाँ, ये बेसिक प्रिंसिपल या फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, मुझको तो बहुत अच्छा लगता है 8वां अध्याय। बहुत अच्छा जी। अव्यक्ताद व्यक्ता व्यक्त अभ्रावते, मतलब अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है। एक बहुत ही विचित्र चीज मैं पढ़ रहा था भगवत गीता के ऊपर, कि भगवत गीता जिसने भी ट्रांसलेट करी थी सबसे पहले, फॉर एग्जांपल उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जिसने भी, तो ही कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। जिसने फारसी में कन्वर्ट किया, ही कन्वर्टेड इनटू हिंदुइज्म। जिसने उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो दे ऑल कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म आफ्टर ट्रांसलेटिंग भगवत गीता फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कितनी सुंदर बात है ये। हाँ, और जो एडविन मैं कितना अच्छा किया गीता का, दी सॉन्ग सेलेशियल मेरे पास है, वो उनका एडविन का सॉन्ग सेलेशियल बहुत सुंदर है। वो बड़े भक्त थे भगवान के। उन्होंने बहुत सुंदर, आई थिंक इन दी 80-90s में उन्होंने सब किया था। इसका बहुत सुंदर है सॉन्ग सेलेशियल। छोटी सी किताब है, उसमें उन्होंने पद्य के अंदर गीता का अर्थ किया है।
एक वीडियो भी शेयर की थी, मेरा ख्याल ओम जी ने की या किसी ने की, वो मुस्लिम आचार्य है, पर आचार्य भगवत गीता का है वो अपनी पूरी मुस्लिम पोशाक टोपी टोपी पहन के आता है, यूट्यूब पे उसकी वीडियो पर बोलता है भगवत गीता के ऊपर पूरा का पूरा उसको पूरा कंठस्थ पड़ा है और जैसे आचार्य है उसी की तरह से बोल रहा। मैंने कहा अच्छी बात है ये तो ऐसे लोग तो वैसे तो वास्तविकता में हिंदू ही हैं। वो होगा, क्या बोलते हैं, जाकिर नाइक तो नहीं है? नहीं, जाकिर नाइक नहीं, ये एक्चुअल आचार्य है। जाकिर नाइक तो बदमाश है। जाकिर नाइक तो यूज करता है ना उसको डिनाउंस करने के लिए। जी। लेकिन ये भी बात है जो गीता को अब जैसे हम कहने को कह रहे हैं कि मुसलमान अगर वो गीता को मानेगा तो वो लोग उसको मुसलमान नहीं मानते हैं। जैसे कि ये अब्दुल कलाम आजाद जो है जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके जनाजे में कोई बहुत कम लोग थे। अच्छा। मतलब उस धर्म उस मजहब के। अच्छा। वो उनको मानते ही नहीं थे क्योंकि वो भाई अपने भाषण में वो गीता का प्रयोग करते थे। अच्छा। और उन्हें रटे पड़े थे बहुत से। तो वो मजहबी लोग उनको नहीं मानते थे कि ये मुसलमान। चलिए, भगवत गीता महत्व हो गया तो हम लोग कल भी अपना करते हैं 3 से 5 सीनियर्स का प्रोग्राम। जो भी अटेंड करना चाहे प्लीज अटेंड। कल छुट्टी है तब और भी आसान है। हाँ, कल छुट्टी है तो और भी आसान है। गुड फ्राइडे है। कल छुट्टी है। गुड फ्राइडे। कल छुट्टी काहे की है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। अच्छा। गुड फ्राइडे तो दररोज छुट्टी है। दररोज छुट्टी है, कोई फ्राइडे, सब एक ही सरीका है। वो सीनियर्स के लिए तो सब दिन एक जैसे है ना। सब दिन एक समान। सब दिन एक समान। चलिए, आज का यहीं पर हम समाप्ति की तरफ चलते हैं। ओम शांति शांति हरिओम 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 हरिओम। मंगलम शुभम मंगलम शुभम मंगलम शुभम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।